Okay, am I audible to you, my dear friends? Just check the chat box before going live. We would like to check. Am I audible to you? Please type AV in chat box if audio video is clear. Okay, thank you, Yadav sir. Kumar Hiremat ji and Kala Shetty ji, you have raised your hands. Anything you want to say, please type in chat box. Everything is okay. Okay. So you can lower your hand, Kala Shetty sir. Thank you. Okay. Meanwhile, we will check our mind map as well. So our mind map here is Traders Mindset Program. Is my mind map is visible to you? Okay, in full screen. Just type MM in chat box. MM mind map. Okay, thank you. Kada Shetty sir, Yadav sir, thank you. You are the fastest finger first. Thank you. Great. Kumar Hirematji, would you like to say something? Your hand is raised. If yes, then please type in chat box and lower your hand. The question we will take at the end of the webinar. Great. Thank you for lowering your hand. Great. Thank you. Okay. So 2 minutes still to go to start. Good evening, Ashish ji. Good evening. Great. So somehow we are not able to connect the meeting with the YouTube. Okay. We are not finding any option to connect the meeting. So we will upload on the YouTube as well. I think we are unable to connect with YouTube. Maybe we have less technical knowledge due to that. Okay, no worry. Great. Good evening, everyone. Good evening. 1 minute to go. 1 minute to go. If you are excited, please type excited in chat box. Excited in chat box, my dear friends. Yes, Kala Shetty ji, I will use Hindi language. Okay, don't worry about it. थोड़ा सा जो रट्टा मारा है ना उतना तो चलता ही है. Okay, great. Thank you, Yadav ji, Bharat ji, Jagat Singh ji. Great. Thank you very much. Okay, so many new members seems today in the meeting. Thank you very much for joining. So let's get started, my dear friends. कृपया chat box में लिख दीजिए PG permission granted to start this meeting. PG in chat box, permission granted. So with your permission, we would like to start today's meeting. Thank you very much for permission granted in chat box, my dear friends. So दोस्तों स्वागत है आपका and thank you very much for being early. Thank you very much for being on time. आज सैटरडे वीकेंड है. वीकेंड पे आप कुछ भी कर सकते थे. हसीन शाम बिताने अपने जीवन साथी के साथ बाहर जा सकते थे, कोई वेब सीरीज देख सकते थे, बट आपने यहाँ पर पधार कर कुछ नया सीखने का निर्णय लिया. एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, वो आज के इस हम ट्रेडर माइंडसेट के इस YouTube लाइव सेशन में सीखने वाले हैं. ओके, जूम पर भी है ये, YouTube पे लाइव भी हो जाएगा, ये इस तरह का सेशन है. सो आइए शुरुआत करते हैं. आज हम क्या देखने वाले हैं? दो तरह के माइंडसेट होते हैं. दो तरह के माइंडसेट. एक होता है फिक्स माइंडसेट. कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनका माइंडसेट फिक्स माइंडसेट होता है, और कुछ ट्रेडर्स का ग्रोथ माइंडसेट होता है. ग्रोथ, हमेशा वो ग्रोथ के बारे में सोचता है. तो फिक्स माइंडसेट वाले ट्रेडर कौन कौन से होते हैं और ग्रोथ माइंडसेट वाले कौन कौन से होते हैं, पहले हम इन फर्क को जानेंगे, और फिर हम हाउ टू टर्न फ्रॉम फिक्स माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट के लिए कौन सी 7 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो हमें मदद करें, हम भी ग्रोथ माइंडसेट की तरह हो सके. ओके, सो आइए शुरुआत करते हैं. बहरहाल आप सभी YouTube लाइव पे भी इसको देख रहे हैं तो नमस्कार. मेरा नाम जगदीश भगत है. फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से ये वीडियो प्रसारित किया जा रहा है.
और डिस्क्लेमर मैं पहले देना चाहता हूं कि मैं सेबी एनालिस्ट नहीं हूं, और यहाँ पर ये जो सेशन होने वाला है ये आपका इंफॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ाने के लिए है। किसी भी तरह का ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करें। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, पिछले 60 साल में हमने कई सारे ट्रेडर्स के साथ में बात की है, 1-to-1 भी बात किए हैं, वेबिनार्स में भी बात किए, उनका ट्रेड फेल होने के बाद उनसे बात किए, उनका ट्रेड सक्सेस होने के बाद उनसे बात किए, न्यूट्रल रहते समय हमने उनसे बात की है, कुछ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर्स से बात की है, कुछ कम एक्सपीरियंस वालों से बात किए हैं, अलग अलग तरह के लोगों से हमने बातें की है। और उसका स्टडी करने के बाद हमने ये पाया है कि कुछ ट्रेडर्स का माइंडसेट जो है वो फिक्स होता है, उसके कुछ थॉट प्रोसेस होती है, उसके कुछ विचार होते हैं जिस विचार पे वो अड़ा हुआ होता है। जैसे वो स्टडी करते हैं, दे स्टडी। जो फिक्स माइंडसेट वाले ऐसा नहीं कि वो स्टडी नहीं करते, दे स्टडी, बट व्हाट हैपेंस, दे अवॉइड ट्रेडिंग ड्यू टू फियर ऑफ फेलिंग। वो पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में ट्रेड करने का समय आता है वो इस डर में होते हैं कि वो कहीं फेल ना हो जाए, कहीं उनका नुकसान ना हो जाए। तो ये फिक्स माइंडसेट उनका बन जाता है। ओके। दूसरा, हमें क्या पता चला कि लॉसेस होते हैं। ओके। पढ़ाई को लेके उनका एक्शन ऐसा हो जाता है, लॉसेस को लेके क्या होता है कि दे क्विट व्हेन लॉसेस ऑकर। जब नुकसान होता है तब वो खुद को उस गेम से बाहर कर लेते। अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप जब साइकिल चलाना सीखे तो कई बार गिरे, आप जब चलना सीखे तो कई बार गिरे। आपके चलने या आपके छोटे बच्चों के चलने के समय आपने उनको रोका नहीं कि ये गिर जाता है तो मैं इसको अभी चलने ही नहीं दूंगा। अगर ऐसा होता तो वो बच्चा कभी चल नहीं सकता था। ठीक उसी प्रकार जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें छोटे बड़े लॉसेस का सिलसिला जो है वो होता है, और जो फिक्स माइंडसेट वाला ट्रेडर होता है वो लॉसेस से घबरा जाता है और वो ये सोचता है कि ये मेरे लिए नहीं, एंड देन दे क्विट कर जाते हैं। ओके, दे क्विट। तीसरा, उनका एक बिलीफ होता है, हमने ये जाना कि जो फाइनेंशियली अच्छा प्रदर्शन कर रहे, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है वो इनबॉर्न होता है। मतलब वो पैदा ही ऐसे हुए हैं कि उनके अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होता है। ये उनका एक बिलीव सिस्टम होता है कि अगर कोई पैसों को लेके अच्छा प्रदर्शन कर रहा है ट्रेडिंग में या उसके जीवन में, इसका मतलब ये है कि वो इनबॉर्न टैलेंट उसके अंदर है फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी का। ये उनका बिलीफ होता है। ओके। नंबर 4, ग्रोथ के बारे में वो क्या सोचते हैं कि ग्रोथ लिमिटेड है। लेट्स से कल मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, तो उन्होंने कहा कि 1,20,000 है। और हम लोग मिले थे जून महीने में, और होटल का जो मैनेजर है, जो होटल का मैनेजर हमारे प्रोग्राम अरेंज करता है, उसका मोबाइल गिर के टूट गया था, और वो टूटने की वजह से उसके जो नंबर है वो रिट्रीव नहीं हो पा रहे थे। तो मुझे मालूम है कि ये बंदा बहुत अच्छा है टेक्निकली, और जब मैं मैनेजर के पास हिसाब किताब करने गया इवेंट के बाद, तो उसने मुझे कहा कि यार ऐसे ऐसे मेरी समस्या हो गई, इसके लिए मैं आपको कॉल बैक नहीं कर सका, मेरे सारे नंबर उड़ गए। तो रिट्रीव नहीं हो रहे, सिर्फ 27 नंबर रिट्रीव हो रहे हैं, और 2700 से ज्यादा नंबर थे। तो मैंने इस बंदे को फोन लगाया, उसने कहा कि मेरे रूम में आ जाओ। हम रूम में गए। रूम में जाने के बाद आधा पौना घंटा उसने कुछ तो क्या, पता नहीं टेक्नोलॉजी वाले क्या करते पता नहीं चलता है, उन्होंने वो किया, एंड देन उन्होंने ना मैनेजर साहब के सारे नंबर रिट्रीव करके दी। सो ही इज अ सो टैलेंटेड पर्सन। एंड यस्टरडे इन मीटिंग आई आस्क्ड हिम कि आपका सैलरी कितना है। ही सेड 1.2 लाख रुपीस। सो आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा कि क्या, क्योंकि मैंने टैलेंट उनका देख लिया था, तो मैंने उनको पूछा क्या आपको ऐसा लगता है कि आप 1,20,000 वाले व्यक्ति हो?
तो उन्होंने कहा यार नहीं, मेरी पोटेंशियल तो इससे बहुत ज्यादा है। देन व्हाई यू आर डूइंग 1.2 लाख रुपीस नौकरी? आपकी काबिलियत के हिसाब से बढ़ाना चाहिए आपने उसको। बट somehow he stuck with 1.2 लाख। ओके, उनके माइंड में क्या हो गया, ग्रोथ जो है वो लिमिटेड रह गई, है ना। सो somebody needed to push you that यार 1,20,000 के नहीं हो भाई साहब, ऐसे क्या कर रहे हो। ओके, आप उससे ज्यादा की काबिलियत रखते हो। फीडबैक। ओके, अगर आप देखेंगे तो ट्रेडर्स जो फिक्स माइंडसेट वाले हैं वो फीडबैक्स को अवॉइड करते हैं, है ना। और वो फीडबैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, पर्सनली ले लेते हैं उसको। तो फिर और गड़बड़ हो जाती है, ईगो हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जब आपको फीडबैक देता है तो आपकी भलाई के लिए ज्यादातर वो फीडबैक होते हैं, भले वो कड़वे वर्ड्स होते हैं या आपको अच्छे नहीं लगते हैं, बट अगर उसमें सुधार किया जाए तो हमारी तरक्की होती है। बट चैंपियन जो है वो फीडबैक को ब्रेकफास्ट के जैसे लेते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो फीडबैक को अवॉइड करते हैं, है ना, उसको पर्सनली भी ले लेते हैं फीडबैक को। और अगर कोई चिकनी चुपड़ी बातें करता है उनके साथ में तो उस फीडबैक को वो अच्छा मानते हैं। ओके, इन शॉर्ट, जो फिक्स माइंडसेट वाले, सम टाइम कोई बंदा फीडबैक नहीं देता है, सम टाइम मार्केट गिव्स यू फीडबैक। यू ट्रेडेड, ओके, ट्रेड का कुछ तो गड़बड़ हो गया तो कुछ तो फीडबैक आया मार्केट से, एंड दे यूज्ड टू अवॉइड दैट फीडबैक। जरूर नहीं इंसान ने देना चाहिए, कभी कभी परिस्थितियां भी फीडबैक देती है, कभी कभी मार्केट फीडबैक देती है आपको। ओके, सातवां, नजरिया। उनका एटीट्यूड क्या होता है, उनको सब कुछ रेडीमेड चाहिए होता है। ऐसे हमने कई सारे लोगों से हमने मुलाकात की, तो अगर आपको पता चलेगा दुनिया में, भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कॉल करती है ट्रेडर्स को, ट्रेडर का डेटा खरीदती है, और आपको कॉल आता है, हम टिप प्रोवाइड करने वाली कंपनी की ओर से बोल रहे हैं, हम बैंक निफ्टी के ऊपर टिप प्रोवाइड करते हैं। ओके, और हमारी टिप बहुत अच्छे एनालिसिस की होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है, झिंग झैंग, और 2-4 दिन तक के टिप देते हैं वो आपको। फिर उसके बाद में वो आपसे कुछ पैसा चार्ज करते हैं उनकी सर्विसेज का। ओके, और फिर वो टिप आपको मुहैया कराते हैं। हमने कई सारे लोगों से बात की जिन्होंने टिप्स में अपने पैसे गंवाए हैं। ओके, टिप्स में अपने, आप में से कितने लोगों ने टिप्स के ऊपर काम किया है, जरा मैं लिख के बताइए चैट बॉक्स। यू आर नाउ एट स्टेज 2, माने साहब। ओके, Bharat ji, the spouse strategy is not my strategy. My mentor taught me, I implemented, and then I help my student to do the same. Great. Okay, so टिप के ऊपर काम कौन करता है, जिसको बैक टेस्टिंग में समय नहीं डालना है, जिसको फॉरवर्ड टेस्टिंग में समय नहीं डालना है, उसको खुद के ट्रेड का भाव, इस चीज को इस भाव पे इस समय पे मैं खरीदूंगा, ये मेरा रिस्क रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा, ऐसा उन्होंने एक बैक टेस्ट नहीं किया है। ओके, फॉरवर्ड टेस्ट नहीं किया है। चलो मैंने बैक टेस्ट तो कर लिया, क्या लाइव मार्केट में भी चीजें काम कर रही है, चलो लाइव टेस्ट करते हैं। एंड उनको रेडीमेड चाहिए। ओके, सो ऐसा फिक्स माइंडसेट वाले बंदे का एटीट्यूड होता है। ओके, डेयर, डेयर को क्या कहते हैं हम, साहस, करेज। ओके, दे डोंट डेयर टू ट्रेड आफ्टर टेस्टिंग। कुछ लोग टेस्टिंग तो कर लेते हैं, लेकिन टेस्टिंग के बावजूद भी उनके अंदर वो हिम्मत, वो साहस, वो करेज नहीं आ पाता है जो ट्रेड करने यानी टेस्टिंग करने के बाद ट्रेड करने के लिए जरूरी होता है। ओके, नंबर 8, डिसीजन। सी, अगर आप ध्यान से गौर देंगे, ध्यान से गौर करेंगे ट्रेडिंग बिजनेस को या आपके जीवन को, हर रोज आप या हर व्यक्ति सुबह से लेके रात तक, उठने से लेके सोने तक अलग अलग तरह के निर्णय लेता है, छोटे बड़े, ओके, नॉर्मल निर्णय लेता है। अभी मैं जब ऊपर आ रहा था ये प्रोग्राम करने के लिए, तो 7:30 को मैं खाना खाता हूँ। ओके,
तो पत्नी क्या पूछती है, खाना क्या खाओगे, सब्जी क्या बनाओ। ओके, इंटरनेशनल महिलाओं का ये प्रॉब्लम है। ओके, महिलाओं का इंटरनेशनल प्रॉब्लम, सब्जी क्या बनाओ। तो मैंने पत्नी को बोल के रखा है, मुझे ऑप्शन के साथ में सवाल पूछा कर। ओके, तो अभी वो कैसे पूछती है, भिंडी है, चवली है, और दाल है, आप खाना क्या खाओगे। तो मैं उसको भिंडी बना, भिंडी बना, दैट इज अ डिसीजन, दैट इज अ डिसीजन। ओके, वैसा ही ट्रेडिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसीजन पे पहुंचना। ओके, डिसीजन पे पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, और कभी कभी आपका एक डिसीजन आपका ट्रेड बना देता है या ट्रेड बिगाड़ देता है। कोई कोई कभी कभी कोई कोई एक डिसीजन आपका जीवन आगे लेके जाता है, कोई कोई डिसीजन जो है वो पीछे लेके आता है। सो दोस हु हैज फिक्स माइंडसेट, वो कंफ्यूजन में ज्यादा रहते, कंफ्यूजन में ज्यादा रहते। तो कंफ्यूजन में रहने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस डिसीजन पे वैसे होता नहीं जैसे होना चाहिए। अभी कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होता है कि वो सही ही जाएगा, कोई भी डिसीजन जीवन में ऐसा नहीं होता। आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए जो सही नहीं साबित हुए, लेकिन वो डिसीजन लेने से पहले वो ऐसा लग रहा था कि वो डिसीजन सही है, वो लेने के बाद पता चला कि सही था या नहीं था। ओके, सो हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो विवेक है, हमारी जो बैक टेस्टिंग है, ओके, कुछ कुछ अनुभवी लोगों से हम बात करते हैं, उसके बाद फिर डिसीजन लेने में हमें आसानी होती है। स्टिल वो डिसीजन सही होगा या नहीं, वो लेने के कुछ समय बाद ही हमें पता चलता है। लेकिन फिक्स माइंडसेट वाले को देखेंगे ना आप, ज्यादातर वो कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर मेरी पत्नी ये कहे कि आज मेरी इच्छा थी भिंडी बनाने की, तो मेरी ये मजाल नहीं है कि मैं उसको बोलूं कि नहीं मैं भिंडी नहीं खाऊंगा। ओके, बट वो बोलती है माँ के संस्कार, माँ के संस्कार। ओके, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, बट ना डिसीजन पावर वहां पे भी पुअर है, पुअर है। क्योंकि 22 साल की शादी के बाद आपकी पत्नी को पता है क्या खाता है क्या नहीं खाता। ओके, उसकी पसंद की क्या सब्जी है क्या नहीं है। सो coming to the point, fixed mindset traders, okay, they are unable to take decisions confidently, okay. Are you with me so far, my dear friends? Are you with me so far? I will tell you, Bharat ji, don't worry. Okay, yes, forever. Okay, thank you, amazing. Okay, this 8 number point will help you in your life, in your career, in your trading. Okay, everything many 10 में से 9 डिसीजन रॉन्ग होते हैं मेरे असली जीवन में। 10 में से 9, कभी कभी 10 में से 10 रॉन्ग होते हैं, कभी कभी 10 में से 7 रॉन्ग होते हैं। ओके, 2-3 डिसीजन सही जाते हैं। जीवन में बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन में तब भी तरक्की अच्छी होती है। वाई? बिकॉज कि 10 डिसीजन लिए और इंप्लीमेंट करने के बाद पता चला ये 7 गलत है, तो कौन से सही है, जल्दी सही डिसीजन पे जल्दी पहुंचता है आदमी, एंड फिर उसकी तरक्की फास्ट होती है। ओके, दैट इज व्हाट द क्रक्स बिहाइंड दी, है ना। अभी मैंने यूट्यूब लाइव जाने का निर्णय लिया और यूट्यूब लाइव नहीं जा सका, कुछ तो गड़बड़ हो गई टेक्निकल। तो क्या सीखा मैंने इस डिसीजन से, चलो अभी कल उसको टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद अगला वाला लाइव करेंगे, तो अगला वाला लाइव ही होगा, उसके चांसेस बढ़ गए। अगर आज का निर्णय नहीं लिया होता तो कभी भी पता नहीं चलता यूट्यूब पे लाइव कैसे जाते। ओके, वी आर ऑल्सो इन लर्निंग फेज समथिंग, वी टुक द डिसीजन एंड वी हैड कम टू नो, ओहो गलती होगी, अच्छा गलती होगी, चलो चलो अगला वाला। ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाउट, अब मेरे पिताजी ये कहते थे हर चीज का इलाज है, शंका का कोई इलाज नहीं है। ओके, देयर इज अ
कैंसर का भी इलाज है, कोरोना का भी इलाज है, लेकिन शंका का इलाज नहीं है. They trade when they still in doubt. Okay? They trade. हमने देखा है, शंका थी फिर भी उसने ट्रेड ले लिया. They trade when they still in doubt. और जब वो ट्रेड गलत साबित हुआ तब वो खुद से खुद बात करते, तेरे को बोला था ना जगदीश, तेरे को समझता नहीं है, तेरे को जब ये शंका थी तो तूने ट्रेड लिया ही क्यों. और ट्रेड में एग्जीक्यूशन होने के बाद, नुकसान होने के बाद ये आता है, तेरे को मालूम था, तेरे को शंका थी ना, फिर लेना नहीं चाहिए था ना, फिर क्यों लिया. ओके, सो दे उल्टा होता है. असली जीवन में शंका है तो एक्शन नहीं लेता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अलग ही प्रॉब्लम होती है. शंका के बावजूद लोग ट्रेड लेते हैं, शंका के बावजूद लोग ट्रेड लेते हैं, क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, कहीं मेरे से ये ट्रेन छूट ना जाए, ऐसा होता है. और उसकी वजह से डाउट में काफी सारे, हम ऐसा कहते हैं, इफ यू हैव 0.0000001% डाउट, डोंट टेक द ट्रेड. व्हाई? बिकॉज मार्केट समंदर है, एक लहर जाती है दूसरी आती है, एक लहर जाती है. आपको एक स्टॉक में ट्रेड नहीं मिलेगा तो दुनिया भर के स्टॉक्स है, किसी ना किसी में उससे बढ़िया ट्रेड मिलता है. अगर आप सच्चे ट्रेडर हो, आप ढूंढते हो, तो आपको दूसरे वाले स्क्रिप्ट में बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है. ओके, नंबर 10, एग्जिट. दे डोंट प्लान एग्जिट बिफोर इन्वेस्टिंग, बिफोर ट्रेडिंग. फिक्स माइंडसेट वाले. I got a call from someone who has bought Reliance company share at 500 rupees. He called me and he asked me, sir, मैंने 500 रुपए में रिलायंस के शेयर लिए थे, ओके, अभी 2700-2600 रुपए चल रहा है, क्या करना चाहिए. और उसी दिन शाम को दूसरा एक फोन आया, ही सेड मैंने 2800 रुपए में लिए थे, अभी 2600 हो गया, क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए. द पर्सन who is in huge profit, is unable to make decision. Okay, he is confused, he is in doubt. Okay, he doesn't have dare. Okay, कि क्या करूं. और जिसने 2800 में लिया और नुकसान में है, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि एग्जिट कहां करूं. अंदर जाने से पहले उसने बाहर निकलने की रणनीति बनाई ही नहीं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है. ओके, सो इस अच्छा, ओके, ऐसा नहीं कि मैं ये आपको बातें बता रहा हूं तो मैं कुछ इससे जुदा हूं. ये सारे फेजेस में मैं भी गुजर चुका हूं, मैं भी गुजर रहा हूं. आगे ये जर्नी है, चलती रहती है ना. मेरे अंदर भी डाउट आता है, मेरे के अंदर भी कभी कभी डिसीजन की जगह पे इनडिसीजन हो जाता है, कभी कभी मेरा भी एटीट्यूड आलसी बनने का हो जाता है, कभी कभी मेरी भी हिम्मत नहीं होती है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की, नहीं मिलता है मुझे कॉन्फिडेंस, तो मैं नहीं लेता हूँ. ओके, ये चलने वाली बातें हैं. ऐसा नहीं है कि अगर ये किसी के साथ में तो वो गलत ट्रेडर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ओके, लेकिन होता क्या है, इस फिक्स माइंडसेट की वजह से, इस थॉट प्रोसेस की वजह से, इस बिलीफ सिस्टम की वजह से हम उसको बदलते नहीं है जब विचार को, तो फिर ग्रोथ होने की जो संभावना है वो घट जाती, वो कम हो जाती. ओके, तो अभी दूसरे ट्रेडर के बारे में बात करते हैं जिसका ग्रोथ माइंडसेट है. ओके, तो इसके साथ कंपेयर भी करते चलेंगे हम. ओके, जैसे पहला वाला पॉइंट था, दे स्टडी, दे आल्सो स्टडी, बट दे स्टार्ट ट्रेडिंग एंड एक्सपीरियंस रियल थिंग्स. आप गौर करो, आपने पेपर ट्रेड लिया, पेपर ट्रेड लेने के बाद में आपके उसके साथ इमोशन जुड़े हुए नहीं होते हैं. ओके, पेपर ट्रेड में तो 100 लॉट ले लो, आपको चू नहीं होता है, चू भी नहीं होती है. 100 लॉट ले लो पेपर ट्रेड में, बैक टेस्टिंग में, लेकिन when your skin in the game, okay, when your skin in the game only with 1 lot or 2 lot, it does not matter. But when the real money comes into picture, okay, growth mindset वाले को पता होता है कि असली सबक तब समझेंगे, असली सबक तब हमको मिलेगा जब हम रियलिटी में उस ट्रेड को एक्सपीरियंस करें. अभी भरत जी ने लिखा ना, 7 लाख का लॉस हुआ मुझे. अगर मैं उनको अभी पैनल पे बताऊंगा और उनको पूछूंगा व्हाट डिड यू लर्न, तो 4 चीजें बताएंगे वो, ये मैंने सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा. ओके,
4 चीजें बताएंगे, वो चारों चीजें हम 999 रुपीज के कोर्स में सिखाते हैं 5 डे के चैलेंज में 5 दिन में। ओके, और 7 लाख रुपए भर के सीखना अच्छा या 1000 रुपए भर के सीखना अच्छा? आप ऑब्वियसली 1000 भर के सीखना अच्छा। लेकिन ये कब होता है? जब ग्रोथ माइंडसेट वाला रियल एक्सपीरियंस करता है, रियल ट्रेडिंग करके एक्सपीरियंस करता है ना। इस मुद्दे पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा, कई सारे दुनिया में लोगों के यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज पनप रही है। इवन दो अभी आप जितने लोग देख रहे हैं ना, आपके दिमाग में भी बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज है, मिलियन डॉलर आइडियाज है। ओके, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों के पास वो डेयरिंग है कि आप उस बिजनेस को या उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करो और उस बिजनेस की स्थापना करो। ओके, उतरने के बाद पता चलेगा ना। लेट्स से मेरे दिमाग में ज्वेलरी की छोटी सी शॉप खोलने का विचार है, मेरी पकड़ अच्छी है कि मार्केट को क्या पसंद है, मैं ज्वेलरी खरीद के ला सकता हूँ, इमिटेशन ज्वेलरी। ओके, सिंपल वाली, वो गोल्ड और सिल्वर की नहीं, कॉलोनी में जो बिकती है, लेट्स से वो ज्वेलरी। मेरी पकड़ अच्छी है कि मार्केट को क्या चाहिए। ओके, मैं महिला हूं, मुझे पता है अगर कि मार्केट को क्या चाहिए, और मैं 50,000 1 लाख रुपए से इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस बहुत अच्छा कर सकती हूँ। ऐसा हो सकता है कि किसी के दिमाग में विचार बहुत पनप रहा हो, तड़प रहा हो, बट उसमें से बहुत कम लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, सो दे स्टडी फिक्स माइंडसेट वाले, बट अवॉइड। ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है, दे स्टडी बट दे अवॉइड ट्रेडिंग। ओके, ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टडी एंड दे स्टार्ट whether it's a trading, whether it's a business, whether they want to gain real experience. ओके, असली जीवन का मजा अनुभव लेना चाहते हैं। नंबर 2, लॉसेस। अभी इनका क्या विचार है, ये क्विट कर जाते हैं, इनका जरा अलग है। ये उस क्या कहेंगे, उस असफलता से सीखते हैं। दे गेट लेसन्स फ्रॉम लॉसेस, सबक सीखते हैं और आगे बढ़ते। एक बार जब साइकिल चलाते समय आप गिर गए तो साइकिल चलाना छोड़ नहीं दिया, आपने फिर से कोशिश की। आपने देखा अच्छा ऐसी ऐसी नाली आई तो उतर जाना चाहिए, उसके ऊपर से साइकिल चलाते हुए क्रॉस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बैलेंस बिगड़ता है, गिर जाते हैं। सो यू टुक द लेसन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड you moved ahead, and now you are learning, you have learned bicycle very well. Okay, they learn lesson from losses and they move ahead. And my guru Robert Kiyosaki used to say, उसके भी रिच डैड बोलते हैं, उसमें रिच डैड पुअर डैड किताब में उसको बोलते हैं, असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। वाओ, व्हाट अ ग्रेट कोट, आई वांट टू रिपीट इट। असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है। आप में से ऐसा कोई ट्रेडर है यहाँ पर, मुझे बताइए, जिसका कभी भी नुकसान नहीं हुआ है? जस्ट टाइप मी इन चैट बॉक्स, जिसका कभी भी नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, इन ट्रेडिंग वी ऑफन डूइंग सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, even we even even know that this is mistake. Absolutely. And that is why they used to lose their money. देखो, किसी ने भी मैं नहीं लिखा है, सबका नुकसान हुआ है, मेरा भी हुआ है, मैं भी मैं नहीं लिख सकता, इसीलिए मैंने भी नहीं लिखा। ओके, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई अमीर नहीं है जिसने कभी नुकसान न किया। ऐसा कोई सक्सेसफुल किसी भी फील्ड में बंदा नहीं है जिसने असफलता का सामना न किया। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो कभी भी आउट ना हुआ हो। किसी को भी उठा लो आप, ग्रेटेस्ट पर्सन्स को उठा लो वर्ल्ड के, सचिन तेंदुलकर को उठा लो, इवन दो अमिताभ को उठा लो, 2-3 बार बैंकरप्ट हो गया भाई साहब, इतना उम्दा कलाकार है। कैन वी होल्ड ट्रेड ऑन लॉसेस देन गेट प्रॉफिट? यू विल टेल मी what is your exit plan? Shayan ji, you will tell me what is your exit plan.
Okay, if you are the part of my community, I will be very, very strict about exit plan. If you don't have exit plan, I will not allow you to enter in the trade. Okay, and nobody used to ask me this question in my community. Okay, nobody. It's absolutely damn clear. Before entering into the trade, you should know what is your exit plan. Whether the Jagdish Bhagat is alive or not, it does not matter. It really does not matter. Okay, so they learn from the losses. सबक सीखते हैं वो, और सबक सीखने के बाद आगे बढ़ते हैं. तो मेरे से भी गलती हुई, ये एक ट्रेड मिस्टेक हुई. डोंट डू दिस मिस्टेक. Can I share my one biggest mistake in stock market? Just type BIO in chat box. BIO. If you want to, otherwise we will move ahead. Okay. Okay. If you are my community member, you know. If you don't know, I would like to tell you here. क्या हुआ, कोरोना का दिन चल रहे थे ना, कोरोना के दिन. तो कोरोना के दिन में क्या था, मार्केट धराशायी हो गई थी, लफड़े झगड़े बहुत कुछ चल रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था खुलेगा कि नहीं खुलेगा, जिंदगी ऐसी ही चलने वाली है. ओके, दिल्ली की हवा क्लियर हो गई थी एकदम, कुछ कुछ बदलाव हो गए थे, लोगों को पता चल गया था ये सब झिंग झैंग हाई फाई जिंदगी है नहीं. जिंदगी जीने के लिए 4-5 चीजें लगती है. ओके, सब्जी लगती है, रोटी लगती है, बरमोडा और बनियान लगती है. ओके, टी शर्ट लगती है. ओके, दूध लगता है, मेडिसिन लगती है, और बस 4-5 चीजें लगती है. फैमिली साथ में है, और यू कैन रिमेन अलाइव. यू कैन रिमेन अलाइव. सो उस समय क्या हुआ, ऑप्शन सेलिंग में मैंने ग्लीन मार्क का ऑप्शन सेल किया, नेकेड ऑप्शन सेल किया. ओके, 13 रुपए का सेल किया था, 2-3 दिन में वो 10 रुपए का हो गया. ओके, इसी तरीके का माहौल कुछ चल रहा था कि नीचे नीचे बाजार चल रही थी. मैं खुश था, 1300 का लॉट है, 3900 रुपए तो अभी तक जेब में आ गए हैं. ओके, अजय कुमार जी, मैं पूरा हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जो कुछ रट्टा मारा है ना, वो बीच में आ जाता है. तो क्या हुआ, 13 रुपए में मैंने सेल किया कॉल ऑप्शन, 10 रुपए का हो गया. एंड 10 रुपए का होने के बाद मुझे लगा है जीरो हो जाएगा, तो 13,000 वो भी मैं कमा लूंगा, कुल मिला के 17,000 हो जाएगा. एंड 2 दिन में रुका, फिर फ्राइडे हो गया, मार्केट क्लोज हो गई. अब क्या होता है, फ्राइडे का नाइट, सैटरडे का दिन, सैटरडे की नाइट, संडे की नाइट, वीकेंड में वो उथल पुथल बहुत होती है बाजारों में. तो ये बाजारों में जब उथल पुथल होती है, तो उससे मंडे मॉर्निंग को जब मार्केट ओपन होती है, उसका इम्पैक्ट कुछ अलग होता है. एंड जैसे ही फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई, मेरे मोबाइल पे पहला व्हाट्सएप मैसेज आया, ग्लीन मार्क कंपनी ने कोरोना की दवा बना ली, उसका नाम है फैबीफ्लू. अभी देखो, कोरोना की दवा नहीं आ रही थी, सब डर का माहौल था, पहला मैसेज आया. अभी वो ग्लीन मार्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा मैसेज था. एंड आई वाज लुकिंग एट माय मोबाइल, एंड ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले साइन मेरे इधर कपाल पे ऐसे आ गए. एंड देन फिर जो ग्रुप खोलू मैं, उस ग्रुप पे फैबीफ्लू का फोटो और वो मैसेज, जो ग्रुप खोलो वो. ओके, स्कूल फ्रेंड का ग्रुप खोला, ट्रेडिंग वाला ग्रुप खोला, समाज का ग्रुप खोला, जिधर भी जाओ वही वो. फिर मैंने ऑन किया टीवी, फैबीफ्लू, ये वाला न्यूज चैनल, फैबीफ्लू, वो वाला, यू ग्लेन मार्क, जिंग जैंग, पूरी दुनिया खुश थी. वाह, कोरोना की दवा बन गई, अकेला मुझे छोड़ के. एंड शुक्रवार कैसे तैसे निपटा. ओके, शनिवार तो इतना कड़क हो गया कि भगवान जाने क्या होने वाला है. ओके, शनिवार पूरा दिन, शाम तक तो मैं तो एकदम पक गया. 2 पैग लगाने गया मैं दोस्त के साथ में, लाया चल यार अभी ये सहन करने के बाहर है. ओके, एंड देन आई टुक 2 पैग्स. संडे उससे भी हालत खराब थी, क्योंकि 2 दिन में वो मैसेज दुनिया के हर कोने कोने में पहुंच गया था. एंड मंडे मॉर्निंग 9 बजे उस मार्केट को देखने का ऐसा जो डर था, इट वाज देयर. एंड मंडे मॉर्निंग में मार्केट खुली, द ग्लेनमार्क ओपन एट
20% upper circuit. Okay. Pre-market opening में it opened at upper circuit. अब उस दिन मुझे समझ में आया कि जब सर्किट लगती है ना तो स्टॉक में खरीदी नहीं कर सकते आप, अपर सर्किट लगती है तो फ्यूचर का ट्रेडिंग रुक जाता है, लेकिन ऑप्शन का नहीं रुकता है। ऑप्शन में खरीदारी की जा सकती है, एंड सारी खरीदारी ऑप्शन में जब आएगी तो बायर और सेलर का डिफरेंस बढ़ जाएगा। जो बायर और सेलर का डिफरेंस 10 पैसे का होता था कि 13 रुपए में बेचने वाला खड़ा है, 13 रुपए में खरीदने वाला खड़ा है, 13 रुपए 10 पैसे में बेचने वाला खड़ा है, खरीदना है तो 13-10 में मिलेगा आपको, एंड वो डिफरेंस 5 रुपए का था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 30 रुपीज में अगर कोई बेचने के लिए खड़ा है तो खरीदने वाले को 35 में मिलेगा, बेचने वाला 35 में बेचना चाहता है, खरीदने वाला 30 में खरीदने का ऑर्डर, 5 रुपए का डिफरेंस, यानी 6500 का खाली बाय सेल का डिफरेंस था। एंड वो मेरे देखते देखते 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 60, 60, 65, 65, 70, it was running like that. It was running like that. So I squared off at 66 rupees. और उस दिन मैंने सबक सीखा कि चाहे सर्किट लग जाए इक्विटी में, फ्यूचर्स में, लेकिन सर्किट ऑप्शंस में नहीं लगता। और मैंने दूसरा सबक सीखा, कभी भी जीवन में नेकेड ऑप्शन सेल नहीं करना चाहिए। नेकेड ऑप्शन सेलिंग मेक्स यू नेकेड। आई क्रिएटेड वन फेज फॉर मी, नेकेड कपड़े फाड़ देता है, वो नेकेड ऑप्शन सेलिंग मेक्स यू नेकेड। ओके, how many of you smiling right now? Just put smiley in chat box. Just put smiley in chat box. Okay, हंसो हंसो हंसो, दूसरों की गलतियों पे हंसो। Okay, my message to you is, आप भी ऐसी गलतियां करेंगे, and you need to present your mistake in such a way that you will smile when you are sharing your experience, and other will also smile and they will learn from you that don't do these types of mistakes. Okay, don't do these types of mistakes. Okay, by the way, you love the way of teaching. Just type love in chat box with love symbol. Okay, great. Okay, thank you, Ashish Kumar ji. I am receiving your love. Thank you very much. Shivam ji, Arun Lata Rao ji, I am receiving your love. Thank you very much. Thank you, Varsha ji. Oh, nice to see you with double love. Okay, thank you very much. So this is how the journey is all about, my dear friends. Number 3. अभी बिलीफ पे इनका सिस्टम क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड टैलेंट इज इनबॉर्न, लेकिन इनका क्या है? Financial intelligence and talent can acquire. क्या धीरू भाई अंबानी टैलेंटेड बॉर्न थे? क्या झुनझुनवाला साहब टैलेंटेड बॉर्न थे? नहीं। क्या सचिन तेंदुलकर टैलेंटेड बॉर्न था? नहीं। आप जाके देखो, जीवनी पढ़ो सचिन तेंदुलकर की, यू विल कम टू नो कि उन्होंने कितना सुबह 5 बजे उठ के कितना प्रैक्टिस किया। जिस बॉल पे आउट होते थे उसी बॉल को 500 बार खेलते थे 5 बजे से सुबह। वो कोई प्रोग्राम में नहीं जाते थे, कोई फैमिली फंक्शन में नहीं जाते थे। 5 बजे कहाँ मिलेगा सचिन तेंदुलकर? नेट में मिलेगा, नेट में मिलेगा। बिकॉज दे नो कि उसको उस टैलेंट को बनाया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है। जो टैलेंट थोड़ा भी है उसको और बढ़ाया जा सकता है। द पर्सन लाइक मी, ओके, गोबर के घर में वो गोबर लेप लगाती थी मेरी माँ, मुझे याद है, छोटा था, गोबर के घर में रहते थे हम। ओके, सो हम भी ऐसा सोचते थे, यार ये कब कार में बैठेंगे। ओके, सो कहीं तो हमने वो पैटर्न को ब्रेक करना सीखा, किन्हीं गुरुओं के साथ के संगत में रह के, एंड वी ब्रोक दैट पैटर्न, and then we are continuously learning. That is why our company's name is Financial Fitness Cash Flow Community. कि अगर किसी का ऐसा बिलीफ है, ओके, कि उसके अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो इधर आकर के खुद को गलत साबित कर सकता है और बाद में वो कह सकता है हाँ मैं तो फाइनेंशियली फ्री बन गया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में बन गया। ओके, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट। नंबर 4, those
who are our community members, tomorrow morning in Super Sunday webinar, you know, Coal India company जानते हैं ना? How many of you know Coal India company? Coal India, just type yes in chat box. Coal India, do you know everybody? Coal India. So Coal India company का independent director, okay, independent director, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड वही चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी कंपनी का भी है, और मैं 1 साल से उसको चेस कर रहा था, एंड आई गॉट अपॉइंटमेंट फॉर टुमारोज वेबिनार, ओके। और उन्होंने कहा कि इसकी रिकॉर्डिंग आप अगर बाजार में नहीं डालेंगे देन आई विल कम देयर, ओके। तो मैंने उनको इस बात के लिए तो मना लिया कि रिकॉर्डिंग करूंगा मैं, ओके, लेकिन उन्होंने बोला कि ये रिकॉर्डिंग कहीं जानी नहीं चाहिए, तो इस शर्त पे मैं आऊंगा। मैंने बोला ठीक है, आ जाओ। सो कोल इंडिया में नो कोल इंडिया, राइट, एब्सोल्युटली आमिर जी। तो उनका सेशन लिया, और उनका क्या मकसद है सीए बनने के पीछे? उनका मकसद है कि फाइनेंशियल फ्री होना बहुत आसान है अगर ये पर्टिकुलर प्रोसेस को लगातार करते रहे, ओके, तो कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री बन सकता है। तो मैंने बोला अगर ऐसा है तो आपको हमारी कम्युनिटी में आके बता दो ना यार। तो बोले ठीक है, बता देते हैं। सो यू नो आई गॉट कॉल फ्रॉम Super Sunday link, Shrikant ji, you will get after this webinar in our community groups only, paid community groups. Okay, you will get the message after this webinar. So don't miss the session. Okay, so 2 CA is coming. One is the independent director in Coal India company, और उनका जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो पैटर्न है, जिस तरीके के उनके क्लाइंट है, मुझे लगता है मैं सबसे छोटा क्लाइंट हूँ उनका। तो उनके जिस तरह के क्लाइंट है, उनके साथ जब मैं बात करता हूँ, उनके ऑफिस में जाता हूँ, और जिस तरीके से सहज ढंग से वो बताते हैं, उसकी वजह से, उनके इंटेंशन की वजह से सरकार ने उनको न्योता भेजा कि यू शुड बी अ independent director, and you look at the finances of Coal India company, and and take decision for us, and we will follow your decisions. We'll follow your decisions. Okay. Can I share one incident उनके साथ का, डिसीजन लेने का? क्या मैं बताऊं तो आपको क्या निर्णय लेना है जीवन का वो पता चलेगा। Can I share with you? Immediately I will share, and then we'll move ahead. Okay, let me check the time. Okay, we have 20 minutes left till now. Okay, would you like to know? Great, thank you. So उन्होंने क्या देखो बताया, उन्होंने बताया, एक उदाहरण दिया था उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कपल आई, वो कपल जो है वो दोनों डॉक्टर है, ओके, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ इज डॉक्टर, ओके, बोथ आर डॉक्टर्स, एंड वो उनके पास आए और उन्होंने कहा कि 50, okay, they are earning right now 50 lakh rupees. राइट नाउ उनका, वो जो डॉक्टर दंपत्ति है, उनका अर्निंग कितना है? 50 लाख रुपीस पर ईयर, पर एनम अर्निंग है उनका, ओके, पर ईयर। अब 50 लाख ऑलरेडी कमा रहे हैं, अब इनको नया हॉस्पिटल खोलना है, नया हॉस्पिटल, ओके। नए हॉस्पिटल की लागत है 1 2 3 4 5 6 7 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, ओके। नए हॉस्पिटल की लागत कितनी है? 5 करोड़ रुपए। फिर इन्होंने उनसे पूछा कि ये बताओ कि ये जो 5 करोड़ की लागत आप लगाने वाले हो, इस लागत को लगाने के बाद आपका कितना इनकम बढ़ेगा, कितना इनकम आपका बढ़ेगा? सो दे सेड कि हमारा इनकम जो है वो 1 2 3 4 5 20 लाख रुपए से बढ़ेगा, ओके। कितना बढ़ेगा? 20 लाख रुपए से बढ़ेगा। नाउ प्लीज लेट मी नो द आंसर इन चैट बॉक्स। अगर 5 करोड़ को 20 लाख से डिवाइड किया तो व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? लेट मी नो इन चैट बॉक्स। What will be the answer? 25,
Okay, 25, right? The answer is 25. Now इस डॉक्टर दंपत्ति को इनके हॉस्पिटल का ये 5 करोड़ वापस आने के लिए 25 साल का समय लगेगा. ओके, 25 साल का समय लगेगा. Am I right, my dear friends? Am I right? Yes or no? ये 50 लाख छोड़ दो, ये तो ऑलरेडी कमा रहे हैं. अगर हॉस्पिटल बनाए तो ये वाली रकम उनको मिलने वाली है एक्स्ट्रा. इसको छोड़ देते हैं. अगर हॉस्पिटल नहीं भी बनाए तो 50 लाख तो अंदर आ ही रहे साल के. ओके, so what he said, if you learn about financial literacy little bit, okay, or if you will attend my class, he said that, or if you are my client and if you will ask me this question, I will simplify this matter. हॉस्पिटल डालना है या नहीं डालना है, ये निर्णय लेने के लिए ये जो गणित आपने किया, इस गणित का जो आंसर है वो आंसर कितना आना चाहिए? वो आंसर ये आंसर 5 या 5 से कम आना चाहिए. एनी डिसीजन यू मेक इन योर बिजनेस और इन योर लाइफ, ये जो आंसर है ये 5 या 5 से कम आना चाहिए. देन दिस इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी यूनिक इन्वेस्टमेंट, गुड इन्वेस्टमेंट. अगर ये 4 है तो बढ़िया है, 5 है तो ओके करना चाहिए, 4 है तो बढ़िया है, 3 या 3 से कम है तो वो बहुत अच्छी है, अभी से शुरू करना चाहिए. स्टार्ट फ्रॉम नाउ, स्टार्ट फ्रॉम नाउ. ओके, स्टार्ट फ्रॉम नाउ. 3 से कम है तो ये उत्तर. मैंने बोला ये क्या गणित है? बोले ये करके देखो आप. ओके, विदिन 8 days आई हैव रिजेक्टेड माय 8 न्यू प्रोजेक्ट्स. मतलब 8 ऐसी चीजें चल रही थी, आई हैव रिजेक्टेड. वर्षा जी, even I rejected to spend on Facebook and YouTube ads. Yesterday I called him and I stopped all the ads. Only one thing. Okay. What is the reason? कल उनको आके पूछ लेना आप. Okay, but उन्होंने ऐसा समझा है कि अगर आपको कोई भी निर्णय लेना है, अगर ये उत्तर 5 या 5 से कम आया, then move ahead. Is it rocket science? ये समझना रॉकेट साइंस था. उन्होंने आसान करके बताया, मैंने आसान करके आपको बताया. This is not rocket science. Anybody, coming to the point once again. Okay, okay, financial intelligence and talent can acquire. Okay, let's move to the next topic. Growth. इधर ये लिमिटेड है, इधर अनलिमिटेड है बाबा, इधर अनलिमिटेड है. ओके, है ना? मुझे ऐसा लगता है यार ये जिंदगी कम पड़ जाएगी, इतनी ग्रोथ है, इतनी अनलिमिटेड ग्रोथ है. ओके, देयर इज लॉट मोर वर्क टू डू. अपने पास समय नहीं होगा उतना, इतना काम है, इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी ग्रोथ हो सकती है. फीडबैक. ओके, दे लुक्स फॉरवर्ड फॉर फीडबैक. दे टेक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. वो अपने आप को बनाने के लिए फीडबैक लेते हैं. ओके, अपने आप को बनाने के लिए फीडबैक लेते हैं. वर्षा जी, इफ यू आर हियर, we made one meeting 2 days ago, 12-13 people, facilitator in that particular meeting. After that meeting I have taken 15 decisions. Stop ads. Okay, stop ads. Do this. Yeah, 50. I will tell you tomorrow at night 8 PM our meeting is again happening. I take 15 decisions. Looking forward to feedback, because I know your feedback is very very valuable for me. Your feedback is very very valuable for our community. Okay, although I made some mistakes, okay, but the feedback is very very important. I am grateful to you for each person. I am thankful to you. Why? Because जो चीज 1 करोड़ रुपए देके भी आइडिया नहीं मिली, मेरे को मिलती थी, I got that idea.
I got that idea. Number 6, attitude. They spend hours in back testing and forward testing. I used to spend 3-4 hours a day. 300 चार्ट देखता था मैं. आपका लिखो, चार्ट नंबर लिखो चैट बॉक्स में. कितने चार्ट रोज देखते हो? यस वर्षा जी. It's a matter of 60 days. It's a matter of 60 days. Okay. I am not overconfident. Okay. But the problem I got. Okay. And we'll do the solution together. Okay. 4 to 5, 10. You have been studying charts daily. Yes, I am asking about the numbers of charts. Okay. How many charts you read daily? Okay. The more you read charts, the more you become richer. Okay. Shivam Gabda 10, 5. Okay. Everybody, whatever your number is, multiplied by 5. Okay. And do that. If Shivam Gabda is at 10, multiplied by 5, read 50 charts a daily. If you read 5 charts, multiplied by 5, read 25 charts daily. Okay. Don't skip. If you skip, okay, move ahead. Second day, double. Do that. The more you read charts, the more you become richer. They dare to trade after testing. Idhar kya tha? They don't dare to trade after testing. Do you know the person who has a good knowledge, in trading? Okay, but they are unable to take trades. उसको नॉलेज बहुत है, उससे बात करते टाइम ऐसा लगता है अरे यार क्या बंदा है, 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 क्या कमाता होगा. एंड देन वो बोलता है यार मैंने इसके लिए ट्रेड नहीं लिया, इसके लिए ट्रेड नहीं लिया, इसके लिए ट्रेड नहीं लिया. ओके ओके ग्रेट वर्षा जी, 30 चार्ट्स. ओके great, proud of you. Thank you very much for answering. Number 8, decision. They take decision confidently. अभी कॉन्फिडेंस का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लिया तो कॉन्फिडेंट है, ऐसा नहीं. ओके. वो एक मूवी का बहुत अच्छा डायलॉग याद आता है मुझे. ताल मूवी देखी है क्या आपने? ताल मूवी. हैव यू सीन द ताल मूवी? एनीबडी एल्स? ताल. यस, नंदू जी आपने देखी है. ओके. सो वो उससे प्यार करता है ऐश्वर्या राय से, वो उसका खन्ना साहब का लड़का. और फिर वो बोलता है वो उधर पहाड़ों में रहने वाली लड़की हमारी बहू नहीं बनेगी. एंड सडनली वो ग्लास उठाता है, उसका चाचा कोई रिश्तेदार, और तोड़ के फेंकता है. तो गुस्से में आके ऐसा तोड़ के फेंकता है. फिर ये जो वो लड़की से प्यार करता है, खन्ना साहब का लड़का, ये एक गिलास उठा के तोड़ता है, दूसरा तीसरा. बोलता है अगर एक गिलास तोड़ के और ऊंचा बोल के आपको ऐसा लगता है कि आप खुद को सही साबित कर लेंगे, तो मैंने तो चार गिलास तोड़ दिए, इसका मतलब क्या मैं 4 गुना सही हो गया? ऐसा होता है क्या? मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूंगा. इज he has taken decision with confidence. उसके लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती. ओके. चिल्लाने की जरूरत नहीं होती. Confident. Remain cool and calm and then take decision. They are confident inside. They are confident inside. Some traders you will look at them, they are confident inside. अच्छा, हमेशा ही कॉन्फिडेंस होता है ऐसा है क्या? नहीं. राकेश झुनझुनवाला का भी कॉन्फिडेंस डगमगाता है. मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बता रहे थे. वॉरेन बफेट का भी कभी कभी वो डगमगाता है, उनको नहीं आता है कॉन्फिडेंस उस ट्रेड पे, वो नहीं लेते हैं. मेरे साथ भी होता है ऐसा, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, नहीं पहुंचते अपन डिसीजन पे, डाउट में रहते, छोड़ देते हैं उस ट्रेड को. डाउट. ओके. डाउट. दे डोंट ट्रेड व्हेन दे आर इन 0.00001% डाउट. ये पॉइंट गलत जगह पे लग गया लगता है, इधर लगाना चाहिए. ओके. 0.00001. इफ यू आर इन 0. इन ट्रेडिंग स्पेशली अगर कहीं डाउट आ गया ना, शंका का कोई इलाज नहीं. just leave the trade. And 10, exit plan. They create exit strategy before entering. Okay. Now
अभी आपको तो पता चल गया होगा कि ये अवेयरनेस आ गई होगी कि ये फर्क है दोनों के बीच में, अवेयरनेस आ गया तो काफी सारी चीजें तो सुविधाजनक तरीके से आप चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे। स्टिल कुछ ऐसी चीजें जो और ध्यान में रखी तो तेजी से ग्रोथ माइंडसेट में आ सकते हैं। कैन आई शेयर विथ यू? कैन आई शेयर विथ यू? 8 मिनट अभी बचे अपने पास। ओके, कैन आई शेयर विथ यू? यस, ग्रेट, थैंक यू। चलिए, लेट मी शो यू द माइंड मैप अगेन। ओके, सो 7 चीजें 1 मिनट में, एक चीज देखेंगे हम। नंबर वन, गो टू बेसिक्स एंड स्टडी इन डीप। हाँ यार, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ट्रेड गलत हो जाने के बाद यू नो आई गो टू दी बेसिक्स। अरे बेसिक्स में ऐसा बताया गया है, बेसिक्स ये है, द फंडामेंटल इज दिस। सो कई सारे ट्रेड गलत होने के बाद जब मैं वापस बेसिक पे गया तो मुझे पता चला है कितना गधा है जगदीश, तो ये बेसिक्स में बताया जो गलतियां आप कर रहे हैं ना वो सारी की है मैंने, वो सारी की है। और वो बेसिक्स पे जाने के बाद में वो आईना, उसमें गधे का चित्र दिखता है खुद का, ये वो गधा क्या करता है, तो बेसिक्स में 3 बार ये सीखा था। ओके, 3 बार देखा है वीडियो, इसमें क्लियर कट बताया गया है। ओके, so then I went into deep, okay, in basics learn. Most of the answers are hidden in the basics. Most of, ऐसा कुछ झिंग झैंग रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सच में नहीं, सच में नहीं। losses are business expenses. Okay, we always used to say focus on the process, not on the profit. Everyone took losses once or many times. 4 तरह के लॉसेस है, नहीं 4 तरह की चीजें होती है ना, क्या कहते हैं, बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, बड़ा लॉस। तो आपको बड़े लॉस से खुद को संभालना है, छोटा लॉस होता रहेगा, छोटा प्रॉफिट होता रहेगा, बड़ा प्रॉफिट होता रहेगा। ओके, आपको आपके रिस्क कंफर्ट जोन के लॉस तक रहना है। अगर आपका रिस्क कंफर्ट जोन 10 लॉट का है, आपने 100 लॉट ले लिए और वो बड़ा लॉस हो गया तो you will you'll get in trouble, you'll get it, don't remain in trouble zone. Okay, लव लॉसेस का मतलब ये नहीं है कि लव ही करते रहेंगे, लेकिन जब वो लॉसेस हुए हैं उससे आपने क्या सबक सीखा है और कैसे आगे मूव अहेड कैसे कर गए हो, उस समय आपका एटीट्यूड क्या था, नजरिया क्या था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 3, प्रैक्टिस। डूबी डूबी डूबी, वो सुना है क्या गाना 3 इडियट का? जुबी डूबी जुबी डूबी, अब कुछ तो है ना वो ऐसा, इसको मैंने बना दिया डूबी डूबी डूबी। You do, which is action. You be, which you become. Beingness. Okay, we all are human beings. Human beings. Okay, human beings. Be, काम करना है, क्या बनते हैं, फिर काम करते हैं, फिर क्या बनते हैं। क्या मैं कल से बेहतर हूं? हाँ। क्या मैं कल से हम्बल हूं? हाँ। क्या मैं कल से प्रोग्रेस कर रहा हूं? हाँ। कल मैंने जो मेरा नॉलेज था, कल रात को सोते समय एक चैप्टर बुक का पढ़ा तो क्या मेरा नॉलेज बढ़ गया? हाँ। आई एम प्रोग्रेसिंग, यस। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, यस। आई एम डिलीवरिंग दिस वेबिनार लाइव। ओके, is it better than previous previous webinars delivery? Yes, absolutely. शांति से भी बात करके आप तक पहुंचाई जा सकती है, ये मैंने आज की वेबिनार में सीखा है। ओके, वेदर आई हैव कफ एंड कोल्ड प्रॉब्लम, नाक बह रही है, इट्स ओके, बट मैंने सोचा डॉक्टर ने बोला है चिल्लाना नहीं है, तो क्या शांति से बात रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। ओके, आर यू विथ मी गाइस? Are you with me? Voice is not okay. Okay, yes.
इधर वाले साउंड सिस्टम में थोड़ी है गड़बड़ कि आज। ग्रेट, थैंक यू डियर फ्रेंड्स। सो आई एम प्रैक्टिसिंग। छोड़ा नहीं, अरे यार आज सर्दी है छोड़ देते, नहीं छोड़ा नहीं है बॉस, नहीं छोड़ेंगे। वादा किया है तो डिलीवर करेंगे। ओके, डोंट टेक डिसीजन ब्लाइंडली। किसी दोस्त का फोन आ गया, उसने खरीद लिया तो आपने भी खरीद लिया। ओके, आंखें बंद करके डिसीजन ले लिया। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। टी 2 बार लिखा है वो, डोंट डोंट टेक डिसीजन ब्लाइंडली। ओके, ऐसा अगर लिया तो फिर ट्रेडिंग का करियर काम का नहीं है। मेनी पीपल यूज टू टेक डिसीजन रैंडमली। नहीं लेना है आपको रैंडमली डिसीजन। वैसे भी सब कुछ स्टडी करने के बाद डिसीजन गलत हो जाते हैं, रैंडमली लेने के बाद तो उसकी संभावना ज्यादा ही है ना। स्टेयरिंग पे हाथ रख के चलाते समय भी एक्सीडेंट होता है। अगर स्टेयरिंग छोड़ के कार चलाएंगे तो एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा है। ओके, सो दिस इज योर कार, दिस इज योर फाइनेंशियल कार। वो वाली कार बन जाती है 50,000 देके, ये वाली कार ठुकती है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके, जल्दी बनती नहीं है वो। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट। फोकस ऑन द प्रोसेस। अगेन, when you are making money, focus on the process, not on the profit. You are making expenses, you are making losses, still focus on the process, not on the profit, not on the losses. Whether I am making losses, I still focusing on the process, I still focusing on the process. There are many community members, they used to send messages, okay, जिस मैसेज की वजह से वो प्रोसेस हिलती है, वो प्रोसेस हिलती है। बट आई यूज टू स्टक विद द प्रोसेस, रिमेन विद द प्रोसेस। कान खुले रहते हैं, ओके, सेंटिमेंट ओपन रहता है। कभी कभी सेंटिमेंट बिगड़ जाता है तो अपन निर्णय बदल लेते। अदरवाइज आई यूज टू स्टक विद द प्रोसेस, स्टक विद द प्रोसेस। ओके, लंबा टाइम का गेम खेलने के लिए ये जरूरी है, लंबा टाइम का गेम खेलने। ओके, अदरवाइज तो आप नियम की कभी भी धज्जियां उड़ा सकते, कभी, एनी टाइम, एनी टाइम। इवन दो स्पाउस स्ट्रेटजी, मेनी पीपल यूज टू से सर 50 पॉइंट के लिए बहुत अच्छा टारगेट देता है, 50 पॉइंट के लिए बहुत अच्छा टारगेट देता है, 100 तक नहीं जाता है, 70-80 के बाद वापस घूम जाता है, गड़बड़ कर देता है। सो ही सेड दैट आई स्टार्टेड बुकिंग प्रॉफिट्स एट 50 पॉइंट्स। अपना टारगेट 100 का होता है ना, स्पाउस स्ट्रेटजी वालों को पता है, 5 डे चैलेंजर मेंबर्स को। ही सेंड मी मैसेज, मैंने उनको बोल दिया, समझाया नहीं समझा, मैंने उनको बोला भाई साहब ऐसा है, हमने ये भी करके देखा है, 10 ट्रेड होंगे, 5 एसएल जाएंगे, 5 प्रॉफिट आएंगे, ब्रेक इवन होगा, ब्रोकर का पेट भरोगे सिर्फ। ओके, स्टिल यू आर कंफर्टेबल विथ, यू आर ओके विथ, यू आर ब्रेकिंग योर रूल्स, यू आर ब्रेकिंग स्ट्रेटेजी रूल्स। इफ यू आर ओके, मैं क्या बोल सकता हूँ, पैसा आपका है, ट्रेड आप कर रहे हो, समय आप दे रहे हो, आपका बिजनेस है, उसमें से कितना प्रॉफिट लेना है वो आपने डिसाइड किया है, तो मैं क्या बोल सकता। एंड देन ही स्टार्टेड व्हाटएवर ही वाज थिंकिंग। आफ्टर सम डेज ही मैसेज मी, सर आप सही थे। okay. मैंने उसको बोला जो चटका खाया ना आपने, ये चटका हमने खाया है, उसके बाद आपको बताया है, तो आपको वो गरम स्टिक को उठा के देखना ही था कि गरम है कि नहीं, चेक करेंगे। एंड नाउ यू रियलाइज दैट वो गरम है। ओके, वेरी नाइस, very nice. So focus on the process, not on the profit. One important thing here is when your money goes up, your financial IQ goes down. Okay, so this is time to learn more, this is time to learn more. When your money goes up, जब डीमैट का खाते का बैलेंस बढ़ेगा, फाइनेंशियल IQ उतना तेजी से नीचे गिरेगा। This is a warning for you. Okay,
ऐसा मत समझ लेना कि आपने ट्रेड किया, 5 ट्रेड अच्छे चल गए, 4 ट्रेड अच्छे चल गए, पैसे बना लिए तो फतेह हो गई। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जितना पैसा ऊपर जाएगा डीमैट अकाउंट में, फाइनेंशियल आईक्यू के उतने तेजी से नीचे गिरने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और फाइनेंशियल आईक्यू जितना तेजी से नीचे गिरता है, गलत निर्णय, गलत थॉट प्रोसेस आती है, एंड सडनली योर कैपिटल विल वाइप्ड आउट। जब पैसा ज्यादा बढ़ रहा है उल्टा, तब टेंशन ज्यादा होती है। देन दैट इज द टाइम टू लर्न मोर। अभी उल्टा होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब आपके डीमैट अकाउंट में पैसे तेजी से बढ़ जाते हैं तो ये भावना आती है कि यार मुझे तो स्टॉक मार्केट का तो मैं बादशाह बन गया हूं, अभी मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वो 12 बजे तक 4 लाख कमाया, 3:30 बजे तक 5 लाख गवा देता है। फिर उसको समझ में आता है 4 लाख कमाने के बाद अभी सीखना चाहिए था कि ये 4 लाख से आगे कैसे बढ़ा जाता है। ओके, दैट इज द टाइम टू लर्न मोर। Learn more, read new books, enroll in 90 days challenge, enroll in IQ council. That's the time to learn more. Okay, learn more. Today I got call from my partner who is my guru also, Sudhir Kochar. He said that Robert Kiyosaki kahan ka student hai? I said no. He said Jack Canfield kahan ka student hai? I said no. He said Blair Singer kahan ka student hai? I said I don't know. He said up, you just name it, you just name it, and few names are there. ये कहाँ के स्टूडेंट है? अल्लाह कहाँ के स्टूडेंट है? बोले ये मनी एंड यू के स्टूडेंट है। मनी एंड यू इज द प्रोग्राम, रन्स ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, एंड अक्टूबर में वो प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। $5,880 का प्रोग्राम है वो, फॉर कपल, फॉर 2 persons। एंड बोले चलो जाएंगे। मैंने आप जा रहे हो? बोले हाँ। मैं आप क्यों जा रहे हो? अब मैंने किया था, बोले 4 साल पहले। नाउ दे इनवाइटेड मी फॉर क्रू मेंबर बन के वो जा रहे हैं। बोले मेरी इच्छा है कि आप भी चलो, आप अटेंड करो मनी एंड यू प्रोग्राम। ओके, सो इट्स टाइम टू लर्न मोर, इट्स टाइम टू लर्न मोर। वो अभी निर्णय लिया नहीं है, देखते हैं क्या करना है। ओके, दे लिव इन एनवायरमेंट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। ओके, नाउ यू आर हियर। Okay, now you are here. Have you got something new? Just type new in chat box. Maybe one thought, one dialogue can change anybody's life. Anybody's life. One incident. Huh? So remain with the energy, because Thaddeus Lawrence, again my guru from Singapore, he used to say, your environment is more powerful than your willpower. What he says? Your environment is more powerful than your willpower. है ना? कभी कभी हम ऐसी संगत में होते हैं कि वो संगत काम नहीं कर रही, लेकिन वो संगत बदलते ही, अरे वो एक बंदा था, उसके पास पहली इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, एंड स्विमिंग के ग्रुप में जाते थे तब हम, वो ऐसा बहुत नाराज था, व्यापारी था स्विमिंग पूल की। वो स्विमिंग पूल का ग्रुप होता है ना, जैसे सब तैरने वाले मिल गए तो ग्रुप बन जाता है। जिम पे जाओ तो जिम वाले मिल जाते हैं, वो ग्रुप बन जाता है। वर्षा जी जैसे आप वो हिमालय पे गए तो एक ग्रुप बन गया ना, बॉन्डिंग हो गई। तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट एनवायरमेंट। वो भाई साहब भी उधर आते थे, ऐसे उस दिन ऐसे थका हारा, ऐसा स्विमिंग कर नहीं रहा है, बस बैठा है किनारे पे। तो हमको पता था कि इनकम टैक्स की रेट पड़ी है उसके ऊपर। फिर उठ के आया, समवन आस्क्ड मी, यार क्या हुआ इसको, ऐसा ठंडा ठंडा क्यों है? मैंने वो इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी। तो ये बंदा गया, उसके कंधे पे हाथ रखा, हाँ कैसे चल रहा है? मुझे बोला अच्छा क्या मालूम है मुझे इनकम टैक्स की रेट है। ये क्या रोते रहता है? बोले तू, एक इनकम टैक्स की रेट से कुछ नहीं होता है। एक इनकम टैक्स की रेट से पता चलता है कमाना कैसा है। मेरे को देख 4 बार इनकम टैक्स की रेट पड़ी, अभी मैं बाहर टेबल पे ही सल्टा देता हूँ, बोले इनकम टैक्स की रेट को। एक तू क्या रोता रहता है, चल छलांग मार। बोले एक इनकम टैक्स की रेट पड़ी। ओके, see, I am telling you about the like-minded people. तो वो ऐसा बंदा मिला, उसने जब उसके कंधे पे हाथ रखा ना, वो जरा ऐसा हो गया, फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। अरे यार मैं जिंदा हूँ,
मैंने ही तो पैसा बनाया था जो इनकम टैक्स की रेट में चला गया, इसका मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल है। उस बंदे ने इसको एहसास दिलाया, इसका मतलब ये है तेरे अंदर पोटेंशियल है। तू क्या रोता रहता है एक इनकम टैक्स की रेट की वजह से? चोपड़े सीधे कर, सीधे करके अभी ऐसा एक नंबर में पैसा कमा कि इनकम टैक्स वाला रेट डालने को डरे। ओके, नाउ ही हैज 4 showrooms. The person has 4 showrooms. Okay, within 10 years. Within 10 years. So your environment is more powerful than your willpower. Okay, great. 7 मिनट ज्यादा ले लिए आपके, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका. So my dear friends, thank you very much for attending this session, and hope you learned something new today. And here I'm going to stop the recording. Thank you very much for attending.